آج مل کر خدا کے کلام میں واز کے عنوان نبوت کے نرسنگے کی آواز سے شریک ہونے میں وقت گزاریں۔ کتاب مقدس میں خدا اس زمانہ، ہماری کلیسیا اور کیسے ہماری خوشخبری ہمیں ابدی آسمان کی بادشاہی کو لے جائے گی کے متعلق نبوتیں دیتے ہیں۔ کتاب مقدس کی نبوتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خدا کی پیشتر سے حیران کن مقرر کردہ مرضی معلوم کر سکتے ہیں، جو ہمیں وہ تمام اقدام دکھاتی ہے جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیا اسی لیے باپ نے نہیں کہا تھا کہ فوج نرسنگے کی آواز پر آگے بڑھتی ہے اور ایمان کے مقدسین کو نبوت کی آواز پر آگے بڑھنا چاہیے؟ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کیا نبوت پوری کی جا رہی ہے اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں اس زمانہ میں کرنے چاہیے؟ کووڈ-19 وبا اور مختلف موسمی آفتوں کے درمیان کیا ہمارا کام خاموش رہنا ہے؟ یا کیا یہ ان حالات سے باہر نکلنے کا طریقہ ڈھونڈنا نہیں ہے؟ کتاب مقدس ہمیں اس زمانہ میں کیا کرنے کو کہتی ہے اور ہمیں کون سا خاص کام بخشا گیا ہے؟ ہمیں ان معاملات پر احتیاط سے غور کرنا چاہیے تاکہ وہ تمام فرمان و آئین جو ہمیں ماننے چاہیے ہم انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں، بشمول وہ تمام خصوصیات بھی جو ابدی آسمان پر جانے والے ہم لوگوں میں ہونی چاہیے۔ تو پھر آئے ہم مرکز 16 باب سے دیکھیں کہ خدا نے روح القدس کے زمانہ میں رہنے والے لوگوں کو کون سی نبوت دی ہے۔ باب 16 آیت 15، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ہر زمانہ میں، یعنی باپ کے زمانہ، بیٹے کے زمانہ اور روح القدس کے زمانہ میں خدا مختلف نام سے تمام بنی آدم کی رہنمائی نجات کی راہ کی طرف کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس کی تعلیمات کے مطابق ہم نے سیکھا اور تصدیق کی ہے کہ ہم روح القدس کے زمانہ میں یسوع کے نئے نام مسیح آنسنگ ہونگ سے بچائے گئے ہیں۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ نئے نام پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے سزا ان کی منتظر ہے۔ وہ خوشخبری جس پر ہم روح القدس کے زمانہ میں ایمان لائے ہیں کہاں تک پھیلائی جائے گی؟ کیا یہ کچھ خاص قوموں میں پھیلائے جانے کے بعد روک دی جائے گی یا آخر تک پھیلائی جاتی رہے گی؟ آئیں ہم رومیو باب 10 میں درج نبوت کے نرسنگے کی آواز کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آیت 17، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا، چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں۔ ماضی میں ایسا نہیں کہ وہ ایمان نہیں لا سکے، کیونکہ خدا کے کلام کی منادی نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا کلام سب کو سنایا جاتا رہا ہے، اس لیے ایک خاص علاقے میں پہنچنے کے بعد ہماری خوشخبری کی منادی کو روکنے کی نبوت نہیں کی گئی۔ تو پھر یہ کہاں تک پہنچے گی؟ کتاب مقدس کہتی ہے ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں، مطلب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں خوشخبری کی منادی نہیں کی جائے گی۔ خدا نے پیشتر ہی ممکن بنایا کہ ان کی باتیں روئے زمین پر پہنچیں۔ ہماری خوشخبری کے خاص کام کے لیے یوں نبوت کی گئی ہے کہ دنیا کی انتہا تک اس کی منادی کی جائے گی۔
तो फिर नबूवती कलाम के मुताबिक खुशखबरी का क्या होना चाहिए? यकीनन इसकी मुनादी होनी चाहिए। आज कोविड-19 के बायस हम आजादाना अपने पड़ोसियों से नहीं मिल सकते और हत्ता के हमारे रिश्तेदार या खानदानी अरकान से भी अपने खौफ के सबब ये वो हालात हैं जिनसे हम इस जमाना में दो चार हैं। कोविड-19 लोगों को जुदा कर रहा है। चूंकि ज्यादातर जगहें बंद हो चुकी हैं, अब भी ऐसे मुमालिक हैं जहां लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोरिया उन अक़वाम में से एक है जिन्होंने अछूती बीमारियों के खिलाफ इंसदादी इक़दामात उठाने में अहम किरदार अदा किया है। इसलिए लोग आज़ादाना जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन अब तक कई मुमालिक ऐसे हैं जहां लोग ऐसा नहीं कर सकते। ताहम किताब मुकद्दस में कहीं भी खुदा नहीं कहते कि खुशखबरी की मुनादी कोविड-19 की वजह से नहीं होगी। हत्ता के इन हालात में भी खुशखबरी के काम को कैसे अंजाम देना चाहिए, सारी दुनिया के तमाम लोगों को बचाने के लिए इसे जारी रहना चाहिए। तो फिर वो खुशखबरी क्या है जो तमाम रुए जमीन पर और दुनिया की इंतहा तक पहुंचे? किन के लिए नबूवत है कि उन्हें खुशखबरी की मुनादी का खास काम सौंपा गया है? मती बाब 28 देखते हैं। बाब 28 आयत 18। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हमारी खुशखबरी फैलाने का हुक्म खुदा, जिन्हें आसमान और जमीन का कुल इख्तियार हासिल है, की तरफ से बख्शा गया था। इसलिए हमें सिर्फ दुनियावी हालात पर ही गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जमाना में नबूवतों को गहराई से अपने दिलों पर नक्श करते हुए उन पर गौर करना चाहिए। आयत 19 में यह लिखा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हमें सीखने की जरूरत है कि हुक्म के तौर पर यह नबूवत किनको बख्शी गई थी। क्या ये इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन के लिए थी या पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन के लिए थी? नहीं, रूह कुद्दस का जमाना वो वाहिद जमाना है जब बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दिया जा सकता है। खुदा ने रूह कुद्दस के जमाना में लोगों को क्या करने को कहा था? खुदा ने कहा, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हमारे मानने के लिए बेशुमार कवानीन, फरमान और आइन नहीं है? जब हम जाएं और वो सिखाएंगे जिसका खुदा ने हुक्म दिया था, तो खुदा क्या करेंगे? खुदा ने वादा किया था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। हमें ईमान रखने की जरूरत है कि अगर हम नबूवत की पैरवी खुदा के वादा पर ईमान रखते हुए करें तो हर बात यकीनन पूरी होगी। किताब मुकद्दस में लिखी नबूवतों पर हम किस कदर भरोसा कर सकते हैं? हम दूसरे पतरस के पहले बाब की 19 आयत देखते हैं। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। तुम अच्छा करते हो से मुराद है कि ये काम करना ही दुरुस्त बात है। क्या ऐसा नहीं? ये कहा गया है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि नबूवत का कलाम मुकम्मल तौर पर पूरा होगा। हम मत्ती बाब 26 आयत 51 से देखते हैं। और देखो, यस्सु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यस्सु ने उससे कहा, अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा? मगर वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे।
어떻게 이루어지리요 하시더라고 했습니다. अगरचे तमाम दीगर शागिर्द खौफ से भाग गए थे, 다 달아나버리고 मगर पतरस ने बीच में पड़कर यस्सु की हिफाजत करने की कोशिश की थी ताकि उन्हें गिरफ्तार होने से बचाए। 자르면서까지 그들이 यहाँ तक कि उसने सरदार काहिन के मलखुस नामी नौकर का कान उड़ा दिया। 힘을 지금 쓰고 있습니다. यस्सु ने उसे रोका, अपनी तलवार म्यान में कर ले। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। 이 상황을 तेरे ख्याल में क्या मैं ऐसी सूरत हाल को रोक नहीं सकता जबकि वो मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? तेरे ख्याल से क्या मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है? 능력이 없는 줄로 아느냐? 그러나 मगर वो नविश्ते के यूं ही होना जरूर है, 이런 일이 क्यों कर पूरे होंगे। 어떻게 이루어지겠느냐? 누가 फिर कौन खता की कुर्बानी का बर्रा होगा 유월절 향해 और फसा के बरे की नबुवत पूरी करेगा? 내가 이 मैं इस जमीन पर बनी आदम को बचाने आया हूँ। 땅에서 왔는데 क्या किताब मुकद्दस नबुवत नहीं करती कि मुझे उन्हें बचाने की गर्ज से खता की कुर्बानी बनकर उनके गुनाह उठाने हैं? 기록되어 있는 예언이 아니더냐 말이야. उन्होंने गुज़श्ता 3 सालों में मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम्हारे ख्याल से अब अचानक क्यों मुझ पर हमला करते हैं? यीशु ने पतरस के ईमान और उसकी उन्हें बचाने की ख्वाहिश के मुतालिक बहुत सोचा, 높이 샀습니다만 लेकिन उन्होंने उसे बताया कि उन्हें यीशु को गिरफ्तार करना ही था, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे, 잡으러 왔던 것 बल्कि इसलिए कि वो नबुवत में किरदार निभा रहे थे जो बयान करती है कि यूं ही होना जरूर है। 하고 있을 뿐이다 말이야. इसलिए यस्सु ने कहा, अपनी तलवार लहरानी बंद कर और इसे वापस म्यान में रख ले। और आयत 55 में उन्होंने कुछ यूं कहा कि उसी वक्त यस्सु ने भीड़ से कहा, 말씀하시되 क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। 너희가 나를 잡지 मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि नबियों के नविश्ते क्या हो? 선지자들의 뭘 पूरे हों। 한다고요? नबियों के नविश्ते क्या हैं? मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि किताब मुकद्दस के नविश्ते पूरे हों। 하시더라고 했습니다. 지금까지 मुझे गिरफ्तार करने के तुम्हारे पास कई मौके थे, ताहम तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। 그렇지도 않게 내버려 두었다가 तुम मुझे अब गिरफ्तार कर रहे हो क्योंकि नबुवत का वक्त पूरा हो चुका है। तुम मुझे नबुवत की वजह से गिरफ्तार करने आए हो कि मैं खता की कुर्बानी की नजर हूँ। क्या ऐसा नहीं? 예수님께서 यस्सु खामोशी से उनके पीछे चल दिए थे। क्या वो खुद को बांधे जाने से बाज रखने के लिए उन्हें जेर करके रोक नहीं सकते थे? 무력으로 얼마든지 제압할 수 있고 제재할 수 있었지 않겠습니까? 그러나 ताहम 이런 그 यस्सु ने कहा, 같은 그 행동 क्या नबियों के नविश्तों के मुताबिक 이런 입장에 ये पेशतर ही नबुवत नहीं की गई थी कि वो ऐसा करेंगे 선지자들의 और ये कि मैं ऐसे हालात में पड़ूंगा? 이런 일이 있을 것이라고 예언이 되어 있지 않더냐 말이야. यीशु ने हमें आगाह किया कि कोई भी नबुवतों से गुरेज नहीं कर सकता। 일깨워 주셨습니다. 자, तो फिर 오늘날 हमें अपने जमाने की नबुवतों का जायजा लेना चाहिए। 우리에게 पहले हमने मत्ती बाब 28 और मरकस बाब 16 में हमें बख्शी गई नबुवतें देखी थीं। खुदा इस जमीन पर बनी नौ इंसान को बचाने आए और इस अंजील की खुशखबरी तमाम दुनिया में सामरिया और जमीन की इंतहा तक फैलाई जाएगी। 다 전해지게 될 것이다. खुदा ने जोर दिया है कि ये यकीनन होगा, ये यकीनन वकू में आएगा। 그러나 ताहम 코로나 사태가 कोरोना वबा की वजह से हमें लोगों को शख्सी तौर पर मिलने की इजाजत नहीं है। 이제 코로나 사태 खुशकिस्मती से ऑनलाइन मुनादी की इजाजत है। 다 허용을 하고 있습니다. 우리의 생각 हम हमेशा सोचते थे कि मुनादी सिर्फ लोगों को मिलकर ही की जा सकती है। 다녀야 되는 이런 정도만 생각했는데 ताहम 하나님께서는 인류를 खुदा ने हमें इजाजत दी कि लोगों को उनके घरों में ही ऑनलाइन मुनादी करें। 온라인 시스템을 전부 만들어 주셨습니다. 비대 ये रूबरू मुनादी नहीं है। 어찌 보면 온 세상 हम कह सकते हैं कि खुदा ने ऑनलाइन इनफिरादी मुनादी की राह खोली है 동기를 ताकि तमाम दुनिया को बचाएं। 라고 볼 수가 있겠습니다. नतीजतन हम फी अलवाके मुनादी की मश और खुशखबरी की मुनादी करते हैं। 가까운 इसके अलावा 친척들,
اس وبا نے بھائیوں اور بہنوں کو زیادہ مواقع بخشے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور جان پہچان والوں سے یہ کہتے ہوئے رابطہ کریں کہ وبا کے دوران آپ کیسے ہیں؟ میں نے یہ جاننے کے لیے کال کی تھی کہ آپ کی صحت کیسی ہے۔ خدا نے ہمیں بہت قیمتی وعدہ بخشا ہے کہ وہ فسح کے وسیلہ آفت کو ہمارے اوپر سے گزار دیں گے۔ کیا آپ اس کے بارے میں مزید سننا چاہیں گے؟ اسی طرح آن لائن خوشخبری کی دیکھ بھال اچھی ہو رہی ہے۔ ہماری خوشخبری کی منزل سامریہ اور زمین کی انتہا تک پہنچانا طے ہے۔ اس لیے کیا خوشخبری کے کام کی تکمیل میں شریک ہونے سے زیادہ بڑی کوئی خوشی ہے؟ آئیں ہم دانیل باب 12 سے دیکھتے ہیں، آیت 1۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بہتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہوں گے انہیں کس قسم کی برکات بخشی جائیں گی؟ خدا انہیں آسمان میں ستاروں کی مانند عبدالآباد روشن ہونے کا جلال بخشیں گے۔ اگر خدا ہمیں اس زمانہ میں نبوتی خاص کام بخشتے ہیں تو یہ یقیناً پورا ہوگا، چاہے کوئی ہماری راہ روکے یا خوشخبری کے پھیلاؤ میں رکاوٹ بنے۔ چاہے کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس فرد پر منحصر ہے۔ تاہم خوشی کی خبر جسے ہم پھیلا رہے ہیں، اس کی نبوت سب قوموں میں پہنچائے جانے اور سب لوگوں کو بتائے جانے کے لیے کی گئی ہے۔ تو پھر کیا ہمیں بہتوں کو صادق بنا کر خدا کی باکثرت برکات حاصل نہیں کرنی چاہیے، جیسے خدا نے دانیل باب 12 میں نبوت کی تھی؟ خدا نے صاف طور پر یہ نبوت دکھائی ہے، لیکن اگر ہم اس پر یقین نہ کریں تو ہم ہرگز خوشخبری میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آئے ہم دوسرا تیموتیوس باب 4 سے بھی نبوت دیکھتے ہیں، آیت 1۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ ہمیں انہوں نے کون سی تاکید کی؟ کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہے۔ کس کو خدا نے یہ کلام بخشا تھا؟ بے شک یہ یسوع کی پہلی آمد پر ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کو بخشا گیا تھا، مگر متی 28 باب اور مرکز 16 باب میں درج نبوت، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انہیں بخشی گئی ہے جو روح القدس کے زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ اس لیے روح القدس کے زمانہ میں خدا نے مختصر وقت میں سائنس کی تیزی سے ترقی کروائی ہے۔ وہ دنیا جو ہزاروں سالوں سے بلکہ اربوں سالوں سے خاموش تھی، اس میں دھماکہ خیز انقلاب برپا ہوا ہے۔ سائنس، علم اور تہذیب کے شعبوں میں حیرت انگیز چیزیں وقوع میں آ رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور زمانے میں نہیں آ سکی تھیں۔ خدا نے روح القدس کے زمانہ میں رہنے والوں کو اختراعی قابلیتیں بخشی ہیں۔ کمپیوٹر ایجاد کرنے کی قابلیت اسی زمانے میں ظاہر ہوئی۔ ہم سے پہلے کے لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہم نے ہوائی جہاز جیسی سہل چیزیں بھی ایجاد کی ہیں۔ پرانے زمانہ میں تیز ترین سفر کا ذریعہ گھوڑے یا بگی کی سواری ہوا کرتی تھی، تاہم اب ہمارے پاس ہوائی جہاز ہیں جو گھوڑوں اور بگیوں سے ناقابل موازنہ طور پر تیز ترین ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے ساری دنیا میں چند دنوں میں سفر کرنا آسان بنا دیا ہے۔
जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमें आगे बढ़ने को कहने वाली खुदा की नबूवत के नरसिंगे की आवाज पर चलना चाहिए, 징격 나팔을 불고 계시는데도 लेकिन चूंकि कुछ आर्जी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। 끝까지 खुदा ने वादा किया था कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा और ईमान रखेगा निजात पाएगा, और खुदा किताब मुकद्दस की नबूवतों से अपना वादा दिखा रहे हैं। 예언 가운데서 다 보여주시는데도 लेकिन क्या हो अगर हम यकीन ना करें बल्कि आसमान की राह में पीछे रह जाएं या थक जाएं या छोड़ दें या किसी दूसरी राह पर चले जाएं? अगर हम ऐसा करें 결국 तो हम हरगिज आसमान की बादशाही में दाखिल होने के काबिल ना होंगे। 맛볼 수 없는 것입니다. हमारे जमाना में खुदा ने हमें सिर्फ निजात का फजल ही नहीं बख्शा बल्कि इसके साथ हमारे लिए दूसरों को बचाने के पुरमुसरत काम में शरीक होने की राह भी खोली है। जैसे कि कोविड-19 बहुत शदीद हो गया है, 5월 동안 तो ऐसे कई ममालिक हैं जहां तकरीबन 7 महीनों से इबादतों पर पाबंदी है। वो कहते हैं कि ये पाबंदी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ताहम इंडिया या वस्ती और जनूबी अमेरिका जैसे ममालिक भी हैं जहां ये बदतर हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब भी कई ममालिक हैं जहां लोग आजाद नहीं हैं। इसके बावजूद खुशखबरी के कारकुन अब भी बढ़ रहे हैं 속에서도 또 और खुशखबरी की मुनादी मुसलसल की जा रही है। जैसा कि हम इस नबूवत पर यकीन रखते हैं कि खुदा के कलाम की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक की जाएगी। 전해지고 있습니다. 그전에는 पहले हमने रूबरू मुनादी की थी, 복음의 말씀을 전했지만 이제는 लेकिन अब हम वीडियो चैट के जरिए या ऑनलाइन अपने जान पहचान वालों को मुनादी कर रहे हैं। 휴대폰 화상 통화를 통해서 말이에요. 오히려 그렇게 अब मैं सुन रहा हूं कि यूं बेशुमार फल पैदा हो रहे हैं। 들이 많이 오고 있는 가운데 있습니다. 예, 우리 आए हम एक और नबूवत मुकाशफा 22 बाब से देखते हैं। 또 확인해 봅시다. बाब 22 आयत 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि खा कोविड-19 है या नहीं, 아니 뭐 코로나가 오든 बुराई करने वाले बुराई करना जारी रखते हैं, और जो रास्तबाज हैं रास्तबाजी करना जारी रखते हैं, 의를 행하고 और वो जो मेहनत से मुनादी करते हैं मेहनत से मुनादी करना जारी रखते हैं। खा उनके सामने कुछ रुकावटें हो या नहीं, वो उन रुकावटों को उज़र के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। वो उज़र नहीं हो सकती। 예언의 इसकी वजह यह है कि नबूवत में किसी भी चीज पर गालिब आने की कुदरत मौजूद है, 얼마든지 हत्ता के उज़र पर भी। 이와 같은 힘을 가지고 있는데 목표가 अगरचे इसराइली मिस्र से निकल आए थे, 애굽 땅에서 나왔어도 가나안 पर वो इस या उस तरह से रोजमर्रा सूरत हाल के जेर असर थे, 이루어지는 어떤 일들이 क्योंकि उनका हदफ मुल्क कनान में दाखिल होना नहीं था। 바꾸고 말이에요. जब उनके पास खुराक नहीं थी तो वो लड़खड़ाए, और जब उनके पास पानी नहीं था वो डगमगाए। 하나님께서 우리에게 खुदा ने हमें गोश्त नहीं दिया। मिस्र में हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और जी भरकर शोरबा पीते थे। 수가 있었는데 जब भी लोगों ने शिकायत भरी बातें सुनी उनका ईमान लड़खड़ाया। 되는 것입니다. ताहम वो जिनका हदफ कनान में दाखिल होना था वो नहीं डगमगाए। 있습니다. वो मुस्तैदी से खुदा के वादा पर इतकाद रखते हुए सिर्फ उस नबूवत की सिमत में चले जो खुदा ने दिखाई थी। 그대로 방향을 잡고 열심히 진행하는데 방향 ता वो जिनका हदफ और सिमत नहीं थी हमेशा लड़खड़ाए। हम मुकाशफा बाब 22 आयत 11 से जारी रखते हैं। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। 보라 내가 속히 오리니 देख मैं जल्द आने वाला हूँ। 내게 있어 हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए 일한 대로 어떻게 한다고 मेरे पास क्या है? अजर मेरे पास है। खुदा ने कहा कि वो हमारे काम के मुआफिक हमें बरकत बख्शेंगे। 난 मुझे क्या करना चाहिए? मैं वबा के बायस कुछ नहीं कर सकता। 나는 아무것도 못 하는데 ताहम ऐसे भाई और बहनें हैं जो वबा के बावजूद भी मेहनत से काम करते हैं। 이 생각의 차이 ये नताइज मुख्तलिफ सोचों से आते हैं। 한번 그 मुझे याद है कि मैंने पहले ये कहानी सुनाई है। नाइकी ने 2 सेल्समैन अफ्रीका में भेजे के जाने के क्या वो मकामी लोगों को जूते बेच सकते हैं। 팔 수 있을까 해서 두 사람을 보냈습니다.
두 사람이 दो लोगों ने खबरें दी। 한 사람 उनमें से एक ने कहा, अगर हम अफ्रीका में अपने जूते बेचने की कोशिश करें तो हमें बहुत खसारा होगा, 거기에 팔아 क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग नंगे पांव चलते फिरते हैं। वहाँ हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। 것입니다. ताहम दूसरे शख्स ने मुख्तलिफ खबर दी कि अफ्रीका एक वसी और ना खत्म होने वाली मार्केट है। 그 무궁한 उसने कहा इसलिए कि वो जूते नहीं पहनते, लेकिन अगर एक बार वो लोग जान लें कि जूते पहनकर चलना कितना आरामदेह है, 어떤 वो जूते लेना चाहेंगे। 생각이 그렇게 उसका ख्याल दूसरे शख्स से मुख्तलिफ था। नाइकी किसकी खबर की हिमायत करेगा? 선택했느냐 하면 वो उससे इतफाक करेंगे जिसने कहा था कि अफ्रीका में जूते बेचने की बड़ी इस्तेदाद मौजूद है। पहले पहल नाइकी ने अफ्रीकी लोगों को इस्तेमाल के लिए मुफ्त स्नीकर्स दिए। 신어보라고 무상으로 나눠줬습니다. लोगों ने उन्हें इस्तेमाल किया क्योंकि वो मुफ्त थे। 그러니까 말이죠. उन्हें एहसास हुआ कि नंगे पांव चलने की निस्बत जूते पहनकर चलना कितना आरामदेह था। उनके जूते फट जाने के बाद उन्हें मजीद नंगे पांव चलना आरामदेह महसूस नहीं हुआ। 그래서 그 चूंकि उन्होंने बदतदरीक जूते पहनने की अहमियत को समझ लिया था, इसलिए वो जूते खरीदने लगे। 시작했다고 하는데요. 그렇게 해서 यूं नाइकी अफ्रीका में जूतों के कई जोड़े बेचने के काबिल हुआ। 동화를 팔게 됐답니다. 여러분 우리가 भाइयों और बहनों, अगर हम कोरोना वायरस कहलाई जाने वाली रुकावट के बायस खुशखबरी फैलाने से रुक जाएं या हिचकिचाएं, 거리면 거기에는 तो हम रूल कुद्दस की बख्शिश के वसीला खुदा की मदद हासिल नहीं कर सकते। 되지가 않습니다. 군대는 फौज नरसिंगे की आवाज के मुताबिक चलती है, लेकिन हम ईमान के मुकद्दसीन को जरूर नबूवत की आवाज के मुताबिक चलना चाहिए। 예언의 나 नबूवत के नरसिंगे की आवाज हमसे कह रही है, उठो और मुनव्वर हो। 우리는 इसलिए हमें नबूवत के नरसिंगे की आवाज सुनने के बाद खामोश नहीं रहना चाहिए। 안 되겠습니다. 물론 이제 बेशक हमें खामोश रहना चाहिए जब खुदा हमें खामोश रहने को कहे। ताहम जब खुदा हमें उठने और मुनव्वर होने को कहते हैं तो हमें खुदा के इशारे के मुताबिक चलना चाहिए। गौर करें कि कैसे जिदोन के जंगजुओं ने फतह पाई थी। जब उन्हें मटकों में मछलियां छुपाने को कहा गया तो वो मछलियां छुपाकर खामोश रहे। 그러나 이제 ताहम जब उन्हें कहा गया कि मटके तोड़कर मछलियां बाहर निकालो, तो क्या उन सब ने इस हुक्म के मुताबिक अमल नहीं किया था? कोरोना वायरस को एक बहाना बनाकर कुछ ना करने की निस्बत 올 것이 아니라 आए हम खुदा की मर्जी को इस नबूवत के वसीला जो पूरी हो रही है समझें। 해 보시고 얼마나 क्या खुदा ने हमें बेशुमार आसानियां नहीं बख्शी हैं? 컴퓨터도 खुदा ने हमें कंप्यूटर और फोन बख्शा है। 주시고 अगरचे हम लोगों को रूबरू ना भी मिलें तो हमारे पास लोगों को मुनादी करने के तरीके मौजूद हैं। इसलिए आए हम नबूवत के नरसिंगे की आवाज के मुताबिक अमल करें। ये नबूवत की गई है कि हमें सब कौमों को मुनादी करनी चाहिए, और ये कि इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक होगी। 우리가 전파 ये नबूवत की गई है कि जिस खुशखबरी की हम मुनादी कर रहे हैं वो तमाम रोए जमीन पर पहुंचेगी। ये जाहिर करता है कि खुदा ने सारी दुनिया में खुशखबरी की तकमील का दरवाजा वसी खोल दिया है। ये उम्मीद करते हुए कि आपका ईमान इन नबूवतों पर है और आप ज्यादा रूहों की रहनुमाई रास्तबाजी की तरफ करने के लिए मेहनत से काम करें। मैं आज का आवाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।